شہنامے کا باقاعدہ آغاز کریں گے۔ یہاں آپ کو بتائیں کہ سویڈن میں قرآن پاک کی بے حرمتی کرنے پر گجرانوالہ میں آرٹسٹ برادری نے احتجاجی مظاہرہ کیا ہے۔ مزید جانتے ہیں نیلم آوان کی اس رپورٹ میں۔ سویڈن میں قرآن پاک کی بے حرمتی کرنے پر گجرانوالہ آرٹ کونسل پنجاب کے زیر انتظام آرٹسٹ برادری نے سویڈن حکومت کے خلاف ایک ریلی کا انعقاد کیا۔ اس ریلی میں اعجاز حسین اسسٹنٹ ڈائریکٹر آرٹ کونسل گجرانوالہ، آصف اقبال آرٹسٹ، شاہد خان، شکیل چند، زاہد علی کے علاوہ کثیر تعداد میں آرٹسٹ برادری نے شرکت کی۔ احتجاج اس واسطے ریکارڈ کرایا جا رہا ہے کہ سویڈن میں جو قرآن پاک کی بے حرمتی ہوئی ہے اس کے سلسلے میں ہم اپنا احتجاج ریکارڈ کروا رہے ہیں۔ پوری دنیا میں کسی کو یہ ضرورت نہیں ہونی چاہیے کہ وہ ہمارے مقدس چیزوں کی بے حرمتی کرے، ورنہ ہم سیدھے ہو جائیں گے۔ ریلی کے شرکاء کا کہنا تھا کہ قرآن پاک کی بے حرمتی کرنے والوں کے خلاف سخت ایکشن ہونا چاہیے اور حکومت پاکستان کو چاہیے کہ سویڈن کے سفیر کو ملک سے نکالا جائے اور سویڈن کی اشیاء کا بائیکاٹ کیا جائے۔ قرآن پاک کی بے حرمتی نامنظور، نامنظور۔ قرآن پاک کی بے حرمتی نامنظور، نامنظور۔ قرآن پاک کی بے حرمتی نامنظور، نامنظور۔ حالیہ مونسون اسپیل کے نتیجے میں ہونے والی بارشوں سے ندی نالوں اور دریاؤں میں طغیانی کی صورتحال ہے، جبکہ وزیر آباد میں خان کی بیراج پر درمیانے درجے جبکہ قادر آباد برج کے مقام پر اونچے درجے کا سیلاب ہے۔ مقامی انتظامیہ نے دریا چناب کے کنارے مقیم شہریوں کو مال مویشیوں سمیت محفوظ مقامات پر منتقل ہونے کی ہدایت کر رکھی ہے، جبکہ دریا میں کشتی رانی کو بند کرتے ہوئے قریبی پارکس ایریا میں تفریح کے سلسلے کو عارضی طور پر بند کروا رکھا ہے۔ قریبی دریائی علاقوں میں 9 ریلیف کیمپس قائم کیے گئے ہیں، جہاں ریسکیو 1122 کی اضافی نفری تعینات کی گئی ہے۔ کمشنر گجرانوالہ نوید حیدر شرازی اور RPO گجرانوالہ نے حفاظتی انتظامات کے جائزے کے لیے مقامی ضلعی افسران کے ہمراہ مختلف مقامات پر وزٹ بھی کیے اور انتظامات کو تسلی بخش قرار دیا۔ میکلیوڈ گنج کے نواحی دیہات میں تحفظ قرآن ریلی کا انعقاد کیا گیا، جس میں لوکل آرگنائزیشن اور فاؤنڈیشن کی طرف سے بھی بڑی تعداد میں لوگوں نے شرکت کی ہے۔ ریلی کے شرکاء نے نعرے لگائے اور سویڈن کا جھنڈا بھی جلایا اور نفرت کا اظہار کیا۔ مختلف علماء کرام نے اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ ریلی کے شرکاء سے ظہور چوہان نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ہم دنیا کو بتا دینا چاہتے ہیں کہ آزادی اظہار کے نام پر بدمعاشی بند کی جائے اور سویڈن میں قرآن پاک کی بے حرمتی کی شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہیں۔ حکومت وقت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ سویڈن سے سفارتی تعلقات ختم کیے جائیں۔ قرآن پاک کی محبت ہمارے دلوں سے کوئی بھی نہیں نکال سکتا۔ ہماری زندگی قرآن اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ اگوگی سے بھی سویڈن میں قرآن پاک کی بے حرمتی کے خلاف احتجاجی ریلی نکالی گئی۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں ہمارے نمائندے علی عمران سے۔ جی علی عمران، بتائیے گا۔ جی بالکل، آج میں اس وقت موجود ہوں گوکی ماڈر ٹاؤن میں، جہاں پر سویڈن میں چند روز پہلے قرآن مجید کی بے حرمتی کی گئی ہے۔ میرے ساتھ بیوٹی ویلفیئر ایسوسی ایشن کے پریزیڈنٹ راجہ شکیل صاحب موجود ہیں۔ آئیے ان سے جانتے ہیں کہ وہ اس حرمتی کے بارے میں کیا کہنا چاہتے ہیں۔ جی راجہ صاحب بتائیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ہم بھرپور مذمت کرتے ہیں اس ملعون شخص کی جس نے ہمارے اسلامی کتاب قرآن پاک کی بے حرمتی کی مذمت کرتے ہیں، اور ہم مطالبہ کرتے ہیں سویڈن کی حکومت کے کہ اس ملعون کو کڑی سے کڑی سزا دی جائے۔ بالکل، جیسا کہ راجہ صاحب کا یہی کہنا تھا کہ حکومت وقت سے اپیل کرتے ہیں کہ بدکاروں سے تعلق ختم کیے جائیں اور ایسے شخص کو کڑی سے کڑی سزا دی جائے۔ جی خبر ناروال سے، جہاں پر کرسچن اور سکھ کمیونٹیز کی جانب سے سویڈن میں قرآن پاک کی بے حرمتی پر احتجاجی ریلی نکالی گئی۔ ریلی کی قیادت ممبر پنجاب پربندھک کمیٹی اندرجیت سنگھ کر رہے تھے۔ یہاں پر آپ کو بتائیں گے ناروال میں اقلیتی جماعتوں کی طرف سے ایک ریلی نکالی گئی۔ ریلی کی قیادت پاسٹر بوئز سردار اندرجیت سنگھ، جسٹن رفیق عالم، اندر پاس مسیح، شہباز محمود، عقاب عالم نے کی۔ ریلی کے شرکاء نے سویڈن میں ہونے والی قرآن مجید کی بے حرمتی کے حوالے سے پرزور مذمت
मजम्मत करते हुए हुकूमत से स्वीडन के साथ तमाम सिफारती ताल्लुकात फौरी तौर पर मुनक़ता करने पर जोर दिया। शुरा ने अपने ख्यालात का इजहार करते हुए कहा कि हम अपने मुसलमान भाइयों के साथ शाना बशाना खड़े हैं। इस तरह की घिनौनी हरकत करने वाला किसी भी मजहब का पैरोकार नहीं हो सकता, बल्कि इंसान कहलाने के भी काबिल नहीं है। स्वीडन में कुरान पाक की बेहुरमती करने पर खानपुर जमीयत उलमा इस्लाम सिंध की तरफ से रैली का इनेकाद किया गया। रैली की क़यादत पंजाब के सदर मुफ्ती हबीबुर रहमान ने की। मुजाहिरीन ने स्वीडन मुर्दाबाद के नारे भी लगाए, जबकि मुफ्ती हबीबुर रहमान ने कहा कि स्वीडन के सफ़ीर को फौरी तौर पर मुल्क बदर किया जाए। तमाम PDM जमातें, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आर्मी चीफ अपना अपना किरदार अदा करें। मौलाना अब्दुल करीम नदीम का कहना था कि तमाम इस्लामी ममालिक ने अपने मुल्कों से उनके सफ़ीरों को बेदखल कर दिया है, जबकि हाफिज मोहम्मद दीन मोहम्मद ने कहा कि स्वीडन और फ्रांस की मसनूआत का बायकॉट किया जाए। स्वीडन में कुरान पाक जलाए जाने के खिलाफ कबीरवाला में जमीयत उलमा इस्लाम प्रेस क्लब और सियासी और समाजी हलकों के ज़ेर एहतमाम मुख्तलिफ मकामात पर रैलियाँ निकाली गई हैं। रैलियों में कायदीन और सदर प्रेस क्लब ने तकारीर की और खिताब करते हुए अमीर पासबान ख़त्म नबूवत ज़िले नायब अमीर मौलाना खान मुमताज़ हुसैन हमजा और तहसील अमीर अख्तर हुसैन मौलाना मोहम्मद उमर फारूक असगर और सदर प्रेस क्लब बानी बंगला कसूर शाह ने कहा कि आज़ादी इजहार के नाम पर मुसलमानों की मुक़द्दस किताब को जलाना किसी सूरत काबिल कबूल नहीं है। इस वाक़े की जितनी भी मजम्मत की जाए कम है। दुनिया का कोई भी मज़हब इस बात की इजाज़त नहीं देता। पाकिस्तान की हुकूमत को चाहिए कि वो इस मामले में अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाए और स्वीडन वाक़े की शदीद अल्फाज में मजम्मत के साथ साथ इस्लामी बरादरी के साथ मिलकर इस मामले का मुस्तकिल तौर पर कोई हल निकाले, ताकि आइंदा कोई भी आज़ादी इजहार के नाम पर मुसलमानों के जज्बात को मजरूह ना कर सके। रैली के अख्तिताम पर मुल्क और कौम की सलामती और तरक्की के लिए दुआएं की गईं। दरिया चनाब में मुमकिन सैलाबी सूरत हाल के पेश नज़र ज़िले इंतज़ामिया जंग की जानिब से तमाम इंतजाम मुकम्मल कर लिए गए हैं। मुमकिन सैलाबी सूरत हाल के पेश नज़र ज़िले इंतज़ामिया जंग की जानिब से ज़िले में 18 फ्लड रिलीफ कैंप्स कायम किए गए हैं, जबकि डिप्टी कमिश्नर असिस्टेंट कमिश्नर्स ने फ्लड रिलीफ कैंप्स का दौरा किया है। फ्लड रिलीफ कैंप्स पर तमाम मुतालिका महकमों के स्टाफ की ड्यूटियाँ लगा दी गई हैं, जबकि दरियाई बेट के रहने वाले लोगों को सैलाब की मुमकिन सूरत हाल के बारे में आगाह किया जा रहा है। सियालकोट में दरिया चनाब में मराला के मुकाम पर पानी की आमद 1,14,000 क्यूसेक हो गई है। हुकूमत पंजाब की हिदायत के मुताबिक ज़िले इंतज़ामिया सैलाबी सूरत हाल से निपटने के लिए मुतहरिक हो गई है। 22 मकामात पर रिलीफ कैंप तैयार कर दिए गए हैं, जबकि दरियाओं के साथ साथ रेस्क्यू कैंप्स लगा दिए गए हैं। इंतजाम की मॉनिटरिंग के लिए मुख्तलिफ जगहों पर काम किए जा रहे हैं और मुख्तलिफ इलाकों का दौरा भी किया जा रहा है। डिप्टी कमिश्नर के मुताबिक हेड मराला पानी का अखराज 98,430 क्यूसेक है, जबकि दरिया में निचले दर्जे का सैलाब है। सियालकोट में तमाम बरसाती नाले मामूल के मुताबिक बह रहे हैं। मुख्तलिफ इलाकों में 22 रिलीफ कैंप कायम किए गए हैं, जबकि रेस्क्यू टीमों को 6 मुकामात पर तैनात किया गया है। वज़ीराबाद में रवा बारिशों ने नदी नालों और दरियाओं में तुग़यानी की सूरत हाल पैदा कर दी है। वज़ीराबाद में खान की बैराज पर दरमियाने दर्जे और कादिराबाद में बैराज पर मुकाम पर ऊंचे दर्जे का सैलाब है। दरियाओं नदी नालों में तुग़यानी पंजाब के दरिया भी भर गए हैं, जबकि दरिया चनाब में खान की बैराज के मुकाम पर दरमियाने दर्जे का सैलाब है। वज़ीराबाद में खान की बैराज पर पानी की आमद 1,93,000 क्यूसेक और अखराज 1,76,000 क्यूसेक है, जबकि कादिराबाद बैराज के मुकाम पर दरिया चनाब में पानी की आमद 1,94,000 क्यूसेक और अखराज 1,79,000 क्यूसेक रिकॉर्ड हुआ है। दरिया चनाब में खान की बैराज पर 1.5 लाख क्यूसेक से जायद पानी को दरमियाने दर्जे के सैलाब से ताबीर किया जाता है, जबकि कादिराबाद बैराज में 1.5 लाख क्यूसेक से जायद पानी को ऊंचे दर्जे का सैलाब तस्वुर किया जाता है। मुकामी इंतजामिया ने दरिया चनाब के किनारे सैरगाहें बंद करवा दी हैं और दरिया में किश्ती रानी को भी ममनू करार दिया है। दरिया चनाब से मुल्का रेलिम और बेला में मुख्तलिफ दही इलाका में 9 रिलीफ कैंप कायम किए गए हैं, जहां रेस्क्यू 1112 की इजाफी नफरी तैनात की गई है। मुकामी इंतजामिया और जिले अफसरान ने इंतजामिया के जायजे के लिए मुख्तलिफ मकामात पर विजिट भी किए हैं।
भारत की जानिब से दरियाई चनाब में पानी की आमद में मुसलसल इजाफा हो रहा है और कादिर आबाद के मुकाम पर दरियाई चनाब में निचले दर्जे का सैलाब है। दरियाई चनाब के सैलाबी पानी हाफिजाबाद के 40 से ज़ायद देहात में दाखिल होने का अंदेशा है, जबकि सैकड़ों एकड़ रकबे पर काश्त फसलें भी ज़ेर आब आ सकती हैं। दरियाई चनाब में मुमकिन सैलाब के खतरे के पेश नज़र ज़िले इंतज़ामिया की जानिब से किसी भी हंगामी सूरत हाल से बरवक्त निमटने के लिए 6 फंड्स और रिलीफ सेंटर्स और 12 बोइंग पॉइंट्स कायम कर दिए गए हैं। फ्लड रिलीफ सेंटर्स पर रेस्क्यू डेवलपमेंट डबल 2, महकमा सेहत, लाइव स्टॉक, सिविल डिफेंस और दीगर मुतालिका महकमों के अफसरान और एहलकारों की ड्यूटियां भी लगा दी गई हैं। दरिया सतलज में मुतवक्के सैलाब के पेश नज़र इंतजामिया की जानिब से हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। इंतजामिया की जानिब से दरिया के करीब गवर्नमेंट हाई स्कूल में फ्लड रिलीफ कैंप लगा दिया गया है। मजीद देखते हैं हसैन खान की ये रिपोर्ट। कहरोड़ पका दरियाए सतलुज में मुतवक्के सैलाब के पेश नज़र इंतजामिया की जानिब से हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। दरियाए सतलुज में पानी की सतह मजीद बुलंद होने लगी। इंतजामिया ने दरिया के करीब गवर्नमेंट हाई स्कूल में फ्लड रिलीफ कैंप लगा दिया है। असिस्टेंट कमिश्नर कहरोड़ पका गुलाम हुसैन ने डिप्टी DHO डॉक्टर रशीद अंजम के हमरा फ्लड रिलीफ कैंप का दौरा किया। असिस्टेंट कमिश्नर कहरोड़ पका का कहना है कि मुतवक्के सैलाब के पेश नज़र फ्लड रिलीफ कैंप लगा दिया गया है। फ्लड रिलीफ कैंप में मेडिकल कैंप, वेटरनरी डेस्क और रेस्क्यू कैंप लगा दिया गया है। सैलाबी सूरत हाल का अभी कोई खतरा नहीं। दरिया के किनारे ज़मीनी कटाव को कंट्रोल करने के लिए महकमा इरीगेशन के अफसरान और अमला भी मौजूद है। सैलाब के पेश नज़र शहरियों को महफूज मकामात पर पहुँचाने के लिए रेस्क्यू कश्तियाँ भी मौजूद हैं। असिस्टेंट कमिश्नर कहरोड़ पका गुलाम हुसैन का मजीद कहना है कि मकामी आबादियों को अलर्ट किया गया है। जैसे ही सैलाबी सूरत हाल पैदा होगी उनको महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जाएगा। कहरोड़ पका के दरियाई बेट 25,000 क्यूसेक पानी बर्दाश्त कर सकती हैं। तमाम महकमे अलर्ट हैं और दरियाई इलाकों में ड्यूटियां सर अंजाम दे रहे हैं। कैमरा टीम अब्बास खान के साथ हसनैन खारिंद, मेट्रो 1 न्यूज़, कहरोड़ पका। घोट की शहर माइंस कोकमो शहीद के मुकाम पर 50 फीट चौड़ा शिगाफ पड़ गया है। शिगाफ पड़ने की वजह से सैकड़ों एकड़ पर खड़ी गन्ने और कपास की फसलें ज़ेर आब आ गई हैं। इलाके मकीनों के मुताबिक इत्तला के बावजूद महकमा आपाशी का अमला मौके पर नहीं पहुंच सका है। इलाके मकीन अपनी मदद आपके तहत शिगाफ को बंद करने में मसरूफ़ हैं। शिगाफ पड़ने के बाद पानी तेज़ी से करीबी गाँव में दाखिल होना शुरू हो गया है। एडिशनल सेक्रेटरी होम डिपार्टमेंट कैप्टन रिटायर्ड राना रिजवान कदीर ने कहा है कि कपास की फसल और उसका बीट मीर हज़ार खान, कोटा, रता और झाड़ियों में मुआयना किया है और असिस्टेंट डायरेक्टर ज़राअत असदुल्ला खान की कारकर्दगी को सराहा है। कपास के महकमा ज़राअत की जानिब से कायम नुमाइशी प्लॉट का मुआयना भी किया गया और IPM नुमाइशी प्लॉट को भी सराहा और महकमा ज़राअत की जानिब से कपास को नुकसान पहुँचाने वाले कीड़ों की बरवक्त तल्फ करने के इक़दाम को भी तारीफ़ की गई और दोस्त कीड़ों की अफजाइश नस्ल को फ़रोग देने के इक़दाम को यकीनी बनाने को भी सराहा गया। एडिशनल सेक्रेटरी कैप्टन रिटायर्ड राना रिजवान कदीर ने असिस्टेंट डायरेक्टर ज़राअत असदुल्ला की कपास के टारगेट को बर वक्त मुकम्मल करने और उनके तहसील भर में कपास के हवाले से कारकर्दगी को सराहते हुए दाद दी और डिप्टी डायरेक्टर ज़राअत मुजफ्फरगढ़ राना हबीबुर रहमान की ज़िले भर में कपास की फसल की पैदावार बढ़ाने के इक़दाम की भी तारीफ़ की। शहरनामे का सिलसिला जारी है। हाज़िर ब्रेक के बाद देखते रहिए मेट्रो 1 न्यूज़। शहरनामे के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और बताएंगे आपको मुहर्रम उल हराम के हवाले से SSP मीरपुर खास कैप्टन रिटायर्ड असद अली चौधरी की जानिब से इजलास मुनक़िद किया गया। इजलास में मीरपुर खास ज़िले के तमाम SDPOs और SHOs, इंचार्ज ट्रैफिक और इंचार्ज 15 मददगार ने शिरकत की। मुहर्रम उल हराम के मौके पर सिक्योरिटी प्लान के हवाले से बातचीत की गई। SSP मीरपुर खास का कहना था कि मुहर्रम उल हराम के मौके पर फुल प्रूफ सिक्योरिटी इंतजाम किए गए हैं, ताहम किसी शख्स को भी कानून हाथ में लेने की इजाज़त नहीं होगी। SSP ने मजीद कहा कि मुहर्रम उल हराम के दौरान मातमी जुलूसों, मजालिस और मजहबी इज्तिमात की सिक्योरिटी के लिए फुल प्रूफ इंतजाम किए गए हैं, जिसमें पुलिस के साथ साथ पाकिस्तान रेंजर्स और रज़ाकार भी अमन अमान और फुल प्रूफ सिक्योरिटी के लिए ड्यूटी सर अंजाम देंगे। झंग पुलिस ने मुहर्रम उल हराम सिक्योरिटी प्लान को हतमी शक्ल दे दी है। ज़िले भर में 1902 मजालिस और 493 जुलूस बरामद होंगे। DPO मलिक तारिक महबूब की ज़ेर सदारत मुहर्रम उल हराम की सिक्योरिटी इंतजामात के हवाले से आला सतही इजलास मुनक़िद हुआ, जिसमें SP इन्वेस्टिगेशन समेत
तमाम SDPOs और SHOs ने शिरकत की। मुहर्रम अल हराम में जुलूस मजालिस के अज़ादारों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के लिए जंग पुलिस की जानिब से बड़े पैमाने पर मौसर और खुसूसी हिफाजती इक़दामात किए जा रहे हैं। मुहर्रम अल हराम की सिक्योरिटी के लिए 3000 से ज़ायद पुलिस अफसरान, जवान और इसके साथ वॉलंटियर्स फ़राइज़ अंजाम देंगे। DPO मलिक तारिक महबूब का कहना था कि शहर भर के दाखिली और खारजी रास्तों पर तलाशी, जबकि जुलूस के रास्तों में ही CCTV कैमरे और फ़िज़ाई निगरानी के लिए IT टीम की स्पेशल तश्कील दी गई है। SSP लाड़काना डॉक्टर इमरान खान की ज़ेर सदारत लाड़काना पुलिस का यौम आशूरा के हिफाजती इंतजामात और जराइम पेशा अफराद को कानून की गिरफ्त में लाने के लिए अहम इजलास मुनक़्क़िद किया गया। मज़ीद देखिए सलीम रज़ा की रिपोर्ट। SSP लाड़काना डॉक्टर इमरान खान की ज़ेर सदारत आशूरा के हवाले से इजलास मुनक़्क़िद किया गया। इजलास में SSP लाड़काना ने पुलिस अफसरान को हिदायत जारी की कि महकमा दाखिला की जानिब से जारी करदा ज़ाब्ता अखलाक SOPs पर भरपूर अमल दरामद कराया जाए। किसी भी किस्म के इंतशार पैदा करने वाले अनासरों पर कड़ी नजर रखें और ऐसे अनासरों से कानून के मुताबिक सख्ती से पेश आए। जहाँ पर हिदायत दी गई के तमाम DSPs और SHOs उलमाए कराम और मजहबी शख्सियात से राब्ते में रही। स्पेशल ब्रांच और CTD समेत दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों से एडवांस इंटेलिजेंस शेयरिंग को यकीनी बनाई। तमाम मातमी जुलूसों और मजालिस की स्वीपिंग व क्लियरेंस लाजमी। मातमी जुलूसों और मजालिस में शरीक होने वालों की बदन तलाशी लाजमी करार। वॉक थ्रो गेट्स, मेटल डिटेक्शन, बम डिस्पोजल स्क्वाड के इंतजामात मुकम्मल होने चाहिए। तमाम पुलिस अफसरान जारी करदा अहकामात पर जिम्मेदारी से अमल करने के पाबंद होंगे। इजलास में अमन व अमान की मजमूई सूरत हाल और जराइम पेशा अफराद के खिलाफ जारी कार्रवाइयों का भी बगौर जायजा लिया गया। इजलास में मनशियात फरोशों, इश्तिहारियों और रूपोश मुल्ज़मान की गिरफ्तारियों के हवाले से तमाम SHOs ने ब्रीफिंग दी और अफसरान की कारकर्दगी का जायजा लिया गया। SSP लाड़काना ने अफसरान को हिदायत जारी की कि एक्टिव क्रिमिनल्स के खिलाफ जारी ऑपरेशन को मजीद नतीजा खेज बनाया जाए। गिरफ्तार मुल्ज़मान का क्रिमिनल रिकॉर्ड ऑफिस CRO में लाजमी इंदराज करवाएं। दर्ज केसेस की मेरिट की बुनियाद पर तफ्तीश करें। खुसूसन मर्डर केसेस में तमाम जिम्मेदारी से काम करें। आइस और हीरोइन जैसे कारोबार में मुलविस मुल्ज़मान के खिलाफ नतीजा खेज कार्रवाइयाँ की जाए। इजलास में SSP हेडक्वार्टर आसिफ रजा बलोच, ASP हैदरी अतीकुर रहमान मेकर, जिला भर के DSPs और SHOs ने शिरकत की। कैमरा टीम के साथ सलीम रजा, Metro 1 न्यूज़, लाड़काना। असिस्टेंट कमिश्नर सादिकाबाद हमाद हामिद की मुहर्रम अल हराम के सिलसिले में मीटिंग का इनेकाद किया गया। मुहर्रम अल हराम के सिलसिले में असिस्टेंट कमिश्नर ऑफिस में मीटिंग का इनेकाद किया गया। मीटिंग में मेंबरान अमन कमेटी, शिया सुप्रीम काउंसिल स्पेशल ब्रांच, CCTD सिक्योरिटी ब्रांच, पंजाब पुलिस रेस्क्यू और सिविल डिफेंस के मेंबरान ने शिरकत की। असिस्टेंट कमिश्नर हमाद हामिद का कहना था कि बाहमी मजहबी हमांगी और एक दूसरे के एहतराम से ही मुआशरे में अमन का क़याम मुमकिन है। मुहर्रम अल हराम में मिलकर क़याम अमन को यकीनी बनाएंगे, जबकि मुहर्रम अल हराम में पुलिस की तरफ से फुल प्रूफ सिक्योरिटी के इंतजाम किए जाएंगे। तमाम मकतब फ़िक्र के उलमाए किराम मुहर्रम में अमन व अमान बरकरार रखने में अपना किरदार अदा करेंगे। मीटिंग के अख्ताम पर स्वीडन में कुरान पाक की बेहुरमती के वाक़े की शदीद अल्फाज में मजम्मत भी की गई है। SSP ऑपरेशंस मुल्तान मोहम्मद इमरान ने मुहर्रम अल हराम के दौरान अमन व अमान के हवाले से पुलिस लाइन्स मुल्तान अमन कमेटी के वफ़द से मीटिंग की है। मीटिंग में SSP इन्वेस्टिगेशन मुल्तान राना मोहम्मद अशरफ, SP गिलगित डिवीज़न बाबर जावेद जोया और SP सिटी डिवीज़न हसन रजा घागी और SP कैंट डिवीज़न कैप्टन काजी अली रज़ा और उनके हमरा थे। अमन कमेटी की जानिब से सैयद अली रज़ा गर्देजी, जाहिद बिलाल कुरैशी, मखदूम सैयद हसन मशहदी, प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद सिद्दीक खान कादरी, अल्लामा अब्दुल हक मुजाहिद, हाफिज मोहम्मद फारूक खान सईदी और अल्लामा अनवारुल हक मजहर, जावेद सियाल, सैयद मजहर गिलानी, इनायतुल्लाह रहमानी, मुज़य्यन अब्बास चावान, अजीज़ुर रहमान और दीगर मेंबरान वफ़द में शामिल थे। SSP ऑपरेशंस ने कहा कि मुल्तान में क़याम अमन के लिए अमन कमेटी के मेंबरान और मजहबी रहनुमाओं के किरदार को सराहा। उन्होंने कहा कि मुहर्रम अल हराम के दौरान मजालिस और जुलूस को फुल प्रूफ सिक्योरिटी को यकीनी बनाया और हर मुमकिन इक़दाम किए जाएंगे। अमन कमेटी के वफ़द ने SSP ऑपरेशंस मुल्तान को मुहर्रम अल हराम के मौके पर मिसाल अमन के क़याम के लिए मुकम्मल ताउन का यकीन दिलाया। बहावलनगर में स्वीडन के खिलाफ सिटी प्रेस क्लब की जानिब से एहतजाजी रैली निकाली गई। रैली में सहाफ़ी बरादरी समेत वकला बरादरी और सिविल सोसाइटी की बड़ी तादाद ने शिरकत की। मज़ीद जानते हैं गुलाम मुर्तज़ा जोया से। जी गुलाम मुर्तज़ा, बताइएगा। जी बहुत शुक्रिया। हुर्मते कुरान पे जान भी कुर्बान है। स्वीडन में जो मजहबी दहशत गर्दी की गई है उसके खिलाफ आज पंजाब सिटी प्रेस क्लब की जानिब से एहतजाजी रैली निकाली गई है। मेरे साथ इस वक्त पंजाब सिटी प्रेस क्लब के सदर मौजूद है। मजीद हम इनसे जानते हैं कि इस हवाले से ये कहते हैं। जी सर। आज की रैली जो स्वीडन के अंदर कुरान पाक की बेरहमती की गई है, उसको आग लगाने की कोशिश की गई, उसको फुटबॉल की तरह
کھیلنے کی کوشش کی گئی، ہم اس کی سخت طور پر مذمت کرتے ہیں اور ہم مطالبہ کرتے ہیں پاکستان کی گورنمنٹ سے کہ اس کے سفیر کو نکالا جائے، اس کے سفارت خانے کو بند کے سخت احتجاج کیا جائے، ان کی مصنوعات کا بائیکاٹ کیا جائے، اور اقوام متحدہ سے مطالبہ کرتے ہیں کہ اس کو انسان عالم سے نکالا جائے، اس ملک کو کالعدم قرار دیا جائے جس ملک کی سرپرستی کے اندر حکومت کی اجازت کے ساتھ ایک ایسی کتاب کے ساتھ کھلواڑ کیا گیا جو دنیا انسانیت کے لیے امن کا پیغام دیتی ہے۔ تو اس لیے ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ ان کو سخت سخت سزا دی جائے۔ آج یہ بالکل حرمت قرآن پہ ہماری جان بھی قربان ہے۔ ان کا یہی کہنا تھا کہ جو سویڈن کے سفیر ہیں ان کو فی الفل ملک بدر کیا جائے۔ جی خبر دیں گے چنیوٹ سے، جہاں پر ریونیو ملازمین سمیت 1 سے 17 گریڈ کے ملازمین کو کم تنخواہوں پینشن میں بھی کٹوتی کرنے پر حکومت مخالف دھرنا دے دیا گیا ہے۔ تنخواہوں میں کٹوتی کے ساتھ ساتھ سالانہ انکریمنٹ ختم کرنے کے معاملے پر ملازمین سڑکوں پر نکل آئے۔ ریونیو ملازمین نے قلم چھوڑ ہڑتال کر دی ہے۔ ڈی سی آفس کے باہر دھرنا جاری ہے۔ سرکاری ملازمین ٹینٹ لگا کر سڑک پر بیٹھ گئے۔ ریونیو کوارڈینیشن کونسل اور انجمن پٹواریان نے ڈپٹی کمشنر کے گیٹ پر احتجاجی دھرنا دے دیا۔ احتجاج میں اسکیل 1 سے 17 کے تمام ملازمین شریک ہیں۔ مظاہرین کا کہنا ہے کہ حکومت پینشن اور تنخواہوں میں وفاق کے مطابق اضافہ کرے۔ بنیادی تنخواہ پر گزارا ممکن نہیں رہا ہے۔ ملازمین کا سالانہ انکریمنٹ بحال کیا جائے، جبکہ اس سلسلے میں نوٹیفیکیشن واپس لیا جائے۔ مظاہرین نے احتجاج کرتے ہوئے کہا کہ مطالبات کی منظوری تک احتجاجی دھرنا جاری رہے گا۔ ضلع بھر میں دفاتر میں کام بھی نہیں کیا جائے گا۔ محکمہ ایجوکیشن میں بھی ملازمین کی تنخواہوں اور پینشن کی کٹوتی کے خلاف مکمل تالہ بندی کر کے شدید احتجاج جاری ہے۔ مزید جانتے ہیں خانیوال میں موجود ہمارے ڈسٹرکٹ رپورٹر صلاح الدین مرزا سے۔ جی صلاح الدین، بتائیے گا۔ ان کی جانب سے پورے پنجاب بھر میں جو ہے احتجاج کیا جا رہا ہے تنخواہ اور پینشن کی کٹوتی کے خلاف، تو اس پر حکومت کے خلاف شدید نعرے بازی بھی کی جا رہی ہے۔ میں اس وقت موجود ہوں خانیوال محکمہ ایجوکیشن آفس میں، یہاں پر جو ہے مکمل طور پر تالہ بندی کر کے جو ہے ہڑتال کر دی گئی ہے۔ تو اس پر بات کریں گے، ایپ کا یونٹ کے ہمارے ساتھ رہنما موجود ہیں، ان سے بات کریں۔ جی بتائیے گا، ہڑتال کرنے کا مقصد کیا ہے اور آپ کا پیغام کیا ہے؟ السلام علیکم۔ خانیوال ڈسٹرکٹ خانیوال سے منیر احمد الدانہ، صدر ایپ کا ایجوکیشن۔ ہمارا جو مطالبہ ہے وہ ہے پینشن گریجویٹی LPR کا جو کٹوتی کی گئی ہے وہ ناجائز ہے، وہ ناجائز نوٹیفیکیشن واپس لیا جائے، اور جو تنخواہیں بڑھائی گئی ہیں 35%، اس کے لیے جو انیشل پہ کی گئی ہے وہ نہیں بنتی، رننگ پے بنتی ہے، وہ ہمارے ساتھ ملازمین کے ساتھ زیادتی کی گئی ہے، اور اس زیادتی کو سدباب کرتے ہوئے نوٹیفیکیشن واپس لیا جائے، اور باقی صوبوں اور پنجاب اپنا وفاق کی طرح سے ہماری یہ تنخواہیں بڑھائی جائیں۔ شکریہ جی۔ یہ بتائیے گا، یہ احتجاج کب تک جاری رہے گا اگر آپ کے مطالبات نہیں تسلیم کیے جاتے تو؟ اگر ہمارے مطالبات جو جائز مطالبات ہیں حکومت نے نہ مانے تو ہم قائدین کی آواز میں لبیک کہتے ہوئے اس وقت تک نہیں اٹھیں گے لاہور سے جب تک ہمارے مطالبات پورے نہیں ہوتے۔ جی بالکل، جیسے کہ آپ نے گفتگو سنی، ان کا یہی کہنا تھا کہ جہاں ملک بھر میں جو ہے احتجاج جاری ہے تو وہیں یہ اپنے قائدین کے حکم پر جو ہے ہڑتال کر رہے ہیں۔ اگر ان کے مطالبات تسلیم نہ کیے گئے تو اس احتجاج کا دائرہ کار جو ہے مزید وسیع کیا جائے گا۔ جی، گجرانوالہ پولیس کی فیملیز کی ویلفیئر کے لیے تاریخی اقدامات کا سلسلہ جاری ہے۔ سٹی پولیس آفیسر محمد ایاز سلیم نے پولیس افسران کے اسپیشل بچوں میں خوشیاں بانٹنے کے لیے CPO آفس میں تقریب کا اہتمام کیا۔ CPO محمد ایاز سلیم نے ذہنی اور جسمانی چیلنجز میں مبتلا بچوں کا استقبال کیا اور ان میں تحائف تقسیم کیے۔ دوران تقریب CPO محمد ایاز سلیم نے گجرانوالہ پولیس کے جسمانی طور پر معذور اور چلنے پھرنے سے قاصر ایک بچے کو الیکٹرک کارڈ بائک، جبکہ سماعت سے محروم 7 بچوں کے لیے آلہ سماعت لگوائے۔ اس کے علاوہ ایک لیڈی کانسٹیبل نے ننھے بچے کی لپ سرجری بھی کروائی گئی۔ یہاں پر آپ کو بتائیں گے تھانے سٹی پتو کی پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے 8 ملزمان کو گرفتار کر لیا ہے۔ دوران کارروائی 8 ملزمان گرفتار کر کے پٹاخے، آتشی مادہ اور 8 عدد موبائل فون بھی برآمد کر لیے ہیں، جبکہ ملزمان کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا ہے۔ مزید تفتیش کی جا رہی ہے۔ ملزمان اوکاڑا سے رائمنڈ ایک شادی کی تقریب میں جا رہے تھے۔ گھوٹکی میں گزشتہ رات گھوٹکی میں ہونے والی لرزہ خیز واردات کی CCTV فوٹیج میٹرو ون نیوز کو موصول ہو گئی ہے۔ گھوٹکی شہر کے کلمہ چوک کے علاقے میں دیرینہ دشمنی پر مخالفین نے دکان پر فائرنگ کر کے 10 سالہ بچی سمیت 3 افراد کو قتل کر کے بآسانی فرار ہو گئے ہیں۔ CCTV فوٹیج میں دیکھا جا سکتا ہے کہ ملزمان جدید ہتھیاروں سے فائرنگ کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں۔ واقعہ ساون اور سندرانی قبائل کی دیرینہ دشمنی پر پیش آیا ہے۔ ملزمان کی گرفتاری کے لیے مختلف علاقوں میں چھاپے مارے جا رہے ہیں۔
कोटद्दू के नवाही इलाके कस्बा गरमानी में 16 साल लड़की रस्सियों से बंधी हुई खेतों से बरामद हुई है। कोटद्दू के नवाही इलाके कस्बा गरमानी शहर के रिहायशी अपनी नानी के घर से वापस आ रही थी कि अगवा हो गई। लड़की की वालिदा ने काफ़ी देर गुजर जाने के बाद जब लड़की घर न पहुंची तो अपनी बेटी की तलाश शुरू कर दी, जबकि 16 साल रानिया बीवी को खेतों में घास काटने के लिए जाते हुए ऐनी शाहिदी ने देखकर पुलिस को इत्तला दी। थाने महमूद कोट के सब इंस्पेक्टर शाहिद फरीद मौके पर पहुंच गए। लड़की को रस्सियों से आज़ाद करवाकर मेडिकल के लिए RHC अस्पताल मुंतकिल कर दिया। रानिया अभी गनूदगी की हालत में है, मुल्जिमान के नाम वगैरह नहीं बता पा रही। SHO इब्तिदाई कार्रवाई का आगाज़ कर दिया है। लड़की के वालिद की मुद्दत में अगवा की FIR दर्ज कर दी गई है। मेडिकल रिपोर्ट आने के बाद मज़ीद कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। शादरा के नवाही इलाके इत्तेफाक पूरा नवेद पार्क में तारों के गुच्छे में करंट जारी है। वापडा की नाअहली पर इलाका मकीन सरा पर एहतजाज है। इस वक्त हमारे नुमाइंदे राना अवेज वहां पर मौजूद हैं। जी राना अवेज, बताइएगा। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ इत्तेफाकपुरा और नवीद पार्क में, जहाँ पर वापडा की नाअहली का मुंह बोलता सबूत मेरे कैमरा मैन भी आपको दिखाएंगे कि यहाँ पर लकी टावर है, जिनमें जो है बारिश के होते ही इलाके में जो है वो अब महसूस किया जाता है। और इसके साथ साथ यहाँ पर इलाका मकीना जिस तरह पर एहतजाज हम चीज़ से जानते हैं। सर, क्या कहेंगे इस हवाले से? क्या मैं गुजारिश करूँगा कि आप लोग चाहिए कि हम लोगों को भी जीने का मौका दो। उतारें लटक रही हैं, खुदा रहा इनको या तो सही कर दो या तो उतार के ले जाओ, ताकि ना बस्ती होगी तो ना मतलब हमें खतरा होगा। ज़्यादा इनको या तो केबल नहीं डाल दें। अगर मैं तो मीर अला साहब से अपील करता हूँ, खुदा रहा हमारे हाल पर रहम करिए। मैं मीर अला साहब आपकी बहुत इज्जत करता हूँ, आपको अपना बड़ा भाई समझता हूँ, क्योंकि आपने बड़े अच्छे काम किए हैं और उम्मीद है कि आप आइंदा भी अच्छे काम करेंगे और हमें भी थोड़ा सा मौका दें। आप प्लीज़ हमारे हाल पर भी रहम करिए, इनको ज़रा सावधान करिए कि जाके इस इलाके के मसाइल जो हल करें। जी बिल्कुल, यहाँ पर जो शहरी हैं उनकी आपने बात सुनी, उनका ये कहना है, उनकी वज़ीर आला पंजाब जो वज़ीर आला मौसम नकवी है, उनसे अपील है कि इसका नोटिस दिया जाए ताकि इस इलाके का जो दरीने मसाइल है उनको हल करके आवाम पर जो है वो रहम किया जाए। जी शहरनामे से फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए मेट्रो वन न्यूज़।